होटल मैनेजमेंट काफ़ी पॉपुलर ये कोर्स है कि नहीं, और बहुत चैलेंजिंग भी है क्योंकि कंपटीटर बहुत ज़्यादा है। होटल मैनेजमेंट भी बहुत जगह करवा लेते हैं क्योंकि आप लोग का तो बड़ा एक इंस्टीट्यूट है, एक ना कॉलेज है, कॉलेज में होटल मैनेजमेंट एक कोर्स है। अगर हम देखें कि होटल मैनेजमेंट छोटे छोटे कैंपस भी कर करके होटल मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसमें और आप लोग में क्या डिफरेंट है? देखिए होटल मैनेजमेंट में द थिंग इज दैट अभी जो इस सेक्टर का जो ग्रोथ है दैट इज अबाउट 16%। तो बच्चे अगर कहीं से भी कोई स्टूडेंट 1 साल का कोर्स कर रहा है, कोई स्टूडेंट 2 साल का कोर्स कर रहा है, तो देखा गया दैट ऑल द स्टूडेंट्स आर गेटिंग द जॉब बिकॉज द ग्रोथ ऑफ दिस सेक्टर इज ह्यूज। बट द एडवांटेज ऑफ डूइंग अ ग्रेजुएशन प्रोग्राम इज दैट फॉर एग्जांपल से यू आर अपियरिंग फॉर अ इंटरव्यू, फॉर you have done a graduation, I have done a 1 year diploma program. As a recruiter, whom will give the first preference? Obviously the student who have completed the graduation program. This is one of the reason. After that, what happened in hospitality industry, the growth ratio is huge, means every alternative 6 to 7 months the candidates they appear for the appraisal and they get the promotion. So until and means if you are doing a 1 year program and 1.5 years program, you cannot acquire the proper subject knowledge. To acquire the proper subject knowledge, you require a graduation, at least 3 to 4 years you require. So for that, my suggestion is that whenever you are doing a hotel management, you should go for a graduation program because it will help you a lot to means develop your career in the hospitality industry. But does the student really need to complete the 3 years, because the hotel management is simply so what you all cover in the 3 years? See, because students are giving 3 years like 36 months. Because hotel management is not only that, it means in hotel management course you are teaching the hotel management subjects, at the same time you are teaching the management subject also. Okay. Like hotel management, there will be 4 core papers. The first one is food production, the second one F&B service, third one front office, and the fourth one is accommodation operation. Apart from this, there is a papers are related to management, like your human resource management, sales and marketing management, then your organizational behavior. Then you are, if you are joining in the means food production department, every day you have to take care of the calories of the food. So that's why a subject is being taught biochemistry and nutrition. So there are so many subjects and it's very difficult to cover all these subjects. If you want to go in depth, it's very difficult to cover all these subjects within 1 year and 1.5 years. You require time. So at least to complete a hotel management graduation, the 3 years or 4 years is required. So that's why I always suggest the students that if you are doing a proper graduation, means if you are doing hotel management, think for a graduation program. Okay. A graduation program has to be at least for 3 to 4 years. Okay, 3 to 4 years. So if the one student will do for a 3 years graduation courses, so what are the benefit they will get apart from they are doing diploma course or some certificate course? Obviously the subject knowledge will be more. So only subject knowledge will be more. Subject knowledge will be more. He will get the more practical exposure. And that too, they will get after 1 year diploma course also. When they will join any industry, they will get their knowledge from their practical knowledge. But they will get from that particular institute. See, whenever you are dealing with the case, yeah, you should have a proper subject knowledge. And if you don't have a proper subject knowledge, you cannot do that. For example, say there are so many food items are there. Like if I give an example of a soup that is called gazpacho, it's the national soup of Spain. It's been served cold because normally we consume soup piping hot. Now means if you are doing a 1 year program or say 1.5 year program, these are the things you cannot teach to the students. The college which are offering 1.5 year program in hotel management, they don't teach the proper food production classes. That is one of the important subject of hotel management. So that is the reason. Okay. So if you want to get a proper subject knowledge, if you think you have to build a proper career in hospitality industry, then at least you have to go for graduation program. That's the 3 years graduation program. At least I am talking about 3 years graduation. But the whosoever join this hotel management, they want a quick career. It's a career oriented subject, right? So they want a quick job, like after 1 year or 1.5 year. They want a quick job and they just want to work. But the thing is that they don't have the proper subject knowledge, and that is the reason whenever they appear for the interview, they have एक level में जाके वो लोग रुक जाते हैं. Okay. That is the thing. But after, if you are doing hotel management, that means you are the future manager. You have to do the planning. You have to do the implementation. So these are the qualities they don't achieve. Okay. So that is the reason they should go means at least 2 to 4 years graduation program in hotel management. And which stream like students they like pursue this? All students can pursue. All the students, the humanities, science, commerce. Okay. All the And right now, which stream students are like more in students we are getting from humanities and commerce. अच्छा, humanities and commerce. में जैसे कि होटल मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, जैसे कि इन लाइक हमारे पिछले डिस्कशन में बोला था कि बहुत चैलेंजिंग है, जैसे मार्केट बहुत चैलेंजिंग है, और जो इस प्रकार से आपने बोला कि SIT में आप लोग जिस प्रकार से नेचर करते हैं 3 साल का जो कोर्स अगर कंप्लीट करने के बाद,
पर ये है कि अभी इसमें बहुत हार्डवर्क है। होटल मैनेजमेंट देखने से बहुत हार्डवर्क है, क्योंकि आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, इंटर्नशिप में बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो इस सब से भी रिलीफ करने के लिए कुछ ऐसा तकलीफ मतलब कि वो है जो बच्चों को थोड़ा रिलीफ हो जाए। क्योंकि बोलते एट द इनिशियल स्टेज होटल मैनेजमेंट में बर्तन धुलाते हैं, ये करवाते वो कराते, बहुत मेहनत कराते हैं। मतलब कि दिस आर द कंप्लेंट वी फ्रीक्वेंटली यूज्ड टू लिसन फ्रॉम द स्टूडेंट्स। ये एक मीथ है। अच्छा, ये मीथ है। शेफ प्रिपेयर्स फूड, कभी बर्तन नहीं धोता, बट F&B सर्विस पर्सन हिज ड्यूटीज इज टू सर्व फूड। उसको वाइन भी सर्व करना पड़ता है। वाइन इज अ ह्यूज चैप्टर, आपको पढ़ना पड़ता है वाइन ऑफ फ्रांस, वाइन ऑफ इटली, वाइन ऑफ जर्मनी, वाइन का भी क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम होता है। अब देखिए कोई स्टूडेंट अगर ठीक से पढ़ाई करेंगे तो उसको थ्रू आउट द 4 साल बाद 3 साल उसको पढ़ाई ठीक से करना पड़ेगा। और स्ट्रेस रिलीव करने के लिए वी हैव अ डिफरेंट क्लब एक्टिविटीज़। जब बच्चे लोग पढ़ाई में बोर हो जाता है तो हम लोग उसको क्लब में भेजते हैं। क्लब में वो लोग फ्यूजन क्विजिन लेके डिस्कस करते हैं। वी हैव अ सिंगिंग क्लब, वी हैव अ डांसिंग क्लब, फोटोग्राफी क्लब है। इस सब में हम लोग स्टूडेंट को इन्वॉल्व करते हैं। ऑलमोस्ट वंस इन अ मंथ हम लोग एक मोटिवेशनल टॉक ऑर्गेनाइज करते हैं, जहाँ पे हम लोग इंडस्ट्री से एक्सपर्ट बुलाते हैं। दे गिव द मोटिवेशनल टॉक इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, हाउ द हॉस्पिटल इंडस्ट्री इज चेंजिंग एवरी डे। ये सारी चीज़ स्टूडेंट के साथ हम लोग शेयर करते हैं। और एक चीज़ है, हम लोग का हॉस्पिटल इंडस्ट्री का एक प्लस पॉइंट है, इतना स्टूडेंट डिमोटिवेटेड नहीं होता। बिकॉज देखिए एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन रिक्वायर्स अ जॉब। हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज। जैसे बाय द ईयर 2030 अप्रोक्सीमेटली 5 लाख 5-स्टार कैटेगरी रूम्स विल बी रिक्वायर्ड इन इंडिया। उसके लिए आपको एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मैन पावर का जरूरत है। तो एक ऑप्शन है, हम लोग इन SIT जब स्टूडेंट लोग 4th सेमेस्टर में होते हैं उन लोग को हम लोग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में भेजते हैं। एंड वी सेंड आवर स्टूडेंट्स ओनली इन द 5-स्टार एंड 5-स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी फॉर द इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। इन लोगों का कैंपसिंग कोर्स कंप्लीट होने का पहले ही हो जाता है। जैसे इस बार हम लोगों का कैंपसिंग हुआ ओबेरॉय कच्चार प्रॉपर्टी में, ओबेरॉय राजविलास, दैट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रॉपर्टी इन इंडिया। ओबेरॉय सुख विलास में हुआ, ओबेरॉय अमर विलास हुआ, ओबेरॉय ग्रैंड में हुआ। देन आवर स्टूडेंट बीन सिलेक्टेड फॉर ताज एक्सोटिका गोवा, देन ग्रैंड हयात, पार्क हयात, डबल ट्री बाय हिल्टन गोवा। इस सब प्रॉपर्टी में स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ। सो कभी कभी सीनियर्स जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं, एलुमनी हम उसको बोलते हैं, वो लोग आके भी स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दे ऑल्सो लेट द स्टूडेंट्स नो अबाउट द चेंजिंग सिनेरियो ऑफ द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट तो नॉर्मली बोर नहीं होता है। कभी कभी अगर बोर हो जाता है तो हम लोग का क्लब एक्टिविटीज है, तो क्लब में हम लोग स्टूडेंट को भेजते हैं। आप अगर आपके पास में आपने भी वो सेम जो स्टूडेंट अभी जो कैरी ऑन कर रहा है उससे गुजारा हो क्या है आप? हाँ डेफिनेटली। मैं भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में गया हूँ, मैं भी अपना करियर स्टार्ट किया हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री से। तो हाँ पहले एक साल में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, बट द सी अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर आप ठीक से पढ़ाई किया तो डेफिनेटली बी सिलेक्टेड फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। मैनेजमेंट ट्रेनिंग लेवल में सिलेक्शन आपका होगा तो ऑब्वियसली आपका मेन जो क्राइटेरिया होगा जॉब में, दैट इज प्लानिंग करना होगा, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। इफ यू आर वर्किंग फॉर द पोजीशन ऑफ अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द स्टाफ, यू हैव टू डू द स्टाफ मोटिवेशन, ठीक है, स्टाफ ट्रेनिंग, ये सब ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सो दीज आर वेरी होटल मैनेजमेंट इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि अगर कोई कल को अगर कोई करता है तो अपना भी कुछ रेस्टोरेंट खोल सकता है अगर अच्छा खाना बनाता है। बहुत सारे स्टूडेंट कोर्स करने के बाद इन फ्यूचर दे बिकम एन एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उन लोगों का तो प्रोडक्शन का नॉलेज रहता है, सर्विस नॉलेज रहता है, कैसे कॉस्ट कंट्रोल वो लोग कर पाएंगे, जैसे फूड कॉस्टिंग कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज स्टूडेंट लोगों को पता चल जाता है। पर ऐसा देखते हैं कि होटल मैनेजमेंट 12 आवर्स उनको सर्विस करना पड़ता है, क्या ये रिक्वायर्ड है? नेसेसरी है? बड़े-बड़े होटल में भी 12 आवर्स ही करना पड़ता है? नहीं, एक्चुअली नहीं है, बिकॉज हॉस्पिटल में बेसिकली द ड्यूटी आवर्स है आपका 8 आवर्स टू 9 आवर्स। 8 आवर्स 9 आवर्स, ओके। कभी कभी क्या होता है, ऐसे जैसे मैंने बोला इस इंडस्ट्री में शॉर्टेज ऑफ मैन पावर बहुत ज़्यादा है। एंड ऑल द लीडिंग ब्रांड्स, आपका वर्ल्ड का जितना लीडिंग ब्रांड्स अभी अवेलेबल है, अब देखोगे सर ऑल द लीडिंग ब्रांड्स दे आर ओपनिंग देयर होटल्स इन इंडिया। तो इसका वजह से क्या होता है, मैन पावर जो शॉर्टेज है, तो कभी कभी स्टाफ लोगों को 2-3 घंटा ज़्यादा ड्यूटी करना पड़ता है। जैसे 10 आवर्स हो गए, 8 आवर्स कन्वर्टेड टू 10 आवर्स, बट इसके लिए दे आर एंटरटेड फॉर ओवर टाइम, और खुशी खुशी स्टूडेंट लोग करते हैं। और एक अपॉर्चुनिटी है होटल मैनेजमेंट करने के बाद। नॉर्मली 30% स्टूडेंट ऐसे देखा गया, 30 to 35 स्टूडेंट्स होटल मैनेजमेंट करने के बाद दे गो टू एब्रॉड। जैसे देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इन द गल्फ कंट्रीज, देन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, देन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं। एंड आवर स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन गुड प्रॉपर्टीज मींस थ्रू आउट द पैन यूनिवर्स। ओके ओके, सो दिस इज दैट। तो जैसे कि जो भी बच्चे अगर ना होटल मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो SIT में क्यों करें, और इसमें किस प्रकार का उनको और अलग सा अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो थोड़ा सा स्टूडेंट? मेन रीजन है वी आर द 25 years old कॉलेज। ओके, ठीक है,
we are the NAC accredited college, we have the state of the art infrastructure, we have the excellent labs, excellent faculty members, ठीक है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न स्टूडेंट लोग जो प्रेफर करते हैं, जैसे जिम होना चाहिए कॉलेज कैंपस के अंदर, वो हम लोग का है। वी हैव अ बास्केटबॉल ग्राउंड, वी हैव क्रिकेट ग्राउंड, सो दिस इज़ द रीज़न। And I just want to add one more thing with sir, that is, after all, it is a Techno India Group brand. Yeah, okay. Which is the largest educational amalgamation entire West Bengal. इससे बड़ा ग्रुप कोई है ही नहीं वेस्ट बंगाल। तो जो भी अगर होटल मैनेजमेंट जितने भी स्टूडेंट सबको जॉब में आप डाल देंगे एकदम, सब जॉबलेस कोई नहीं होगा। बिकॉज़ होटल मैनेजमेंट कोर्स एसआईटी में स्टार्ट हुआ 2005 से। ओके, दिस इज वी आर दिस मींस ऑलमोस्ट 19 इयर्स हम लोग का हो चुका है होटल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का। हां, ऑल द स्टूडेंट्स दे हैव ऑल स्टूडेंट्स आर द जॉब डूइंग जॉब। ओके, थैंक यू सो मच सर। ऑल कोर्सेज, सो होप हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम पे और कुछ नए सब्जेक्ट लेके। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।